नंबर 8 जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको सबसे पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product like carbon dioxide, water from the body. Second definition, it is a catabolic process as the food is broken down into the simpler form. In short, respiration is a biochemical activity taking place with a protoplasm of the cell and resulting in the liberation of the energy. So these are the two or three different definitions I have put here. First one is the main definition and second one is the two short definition. You can be write any one of them. Both three are all these are to be the correct format. Okay, so number of times whenever they ask the respiration, define respiration, तो आप लोग क्या लिखते हो कि inhale the oxygen and exhale the carbon dioxide with the help of the nose is called as respiration. No, this is not definition for the 12th standard. Okay, for the 12th standard you have to be the right like this definition. It is a process in which oxygen is used to release the energy or by the complex food material is converted into the simpler food material and the water and carbon dioxide is a byproduct. तो ये तीन चार जो सेंटेंस में जो मैंने वर्ड्स यूज किए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कभी कभी इसको सिंपलर फॉर्म में लिखना होता था. इट इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस because it is breaking down into the complex one to the simpler one and releasing the carbon dioxide and water is called as a respiration. It is also the simple definition. Next one is it is a biochemical activity. Yes, it is a biochemical. It is biology is used because cell is involved and chemical is also involved. So it is a biochemical activity. Then it is takes place where it is takes place in the protoplasm of the cell for the liberation of the energy. So all these are the different definitions of a respiration. Here the main is to be the oxidation process, conversion of a complex molecule into the simpler one, and thirdly the release of energy. That three words is very important. It must be in your definition. So here it is a oxidation process where the complex molecule is broken down to the simpler form and release a energy. Then after this definition, the breathing and respiration, the difference between the breathing and respiration. So here you have to know that कि breathing क्या होता है और respiration क्या होता है. breathing और respiration दोनों भी different चीजें हैं. breathing और respiration. What is breathing? Breathing is a mechanism by which the organism obtain the oxygen from the air and release the carbon dioxide. उसको breathing कहते हैं, not respiration. ठीक है. तो अगर कभी पूछ ही लिया उन्होंने कि डिफाइन द ब्रीदिंग, तो आपको ब्रीदिंग भी पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग क्या होता है. सो मैकेनिज्म बाय विच ऑक्सीजन obtained from a air and release carbon dioxide is known as a breathing. It is a physical process. ये physical process है. breathing is a physical process. It involves the lungs of the organism. तो ये lungs के थ्रू ही किया जाता है. So ये है breathing के 3 points. तो breathing क्या है? ब्रीदिंग क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. ये प्रोसेस पूरी तरह से फिजिकल प्रोसेस है और इसमें लंग्स इन्वॉल्व होता है. इसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं. अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या है? it includes breathing and oxidation of the food in the cells of the organism to release energy. यहाँ पे मेन चीज होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन.
इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये कंप्लीटली बायोकेमिकल है। जबकि ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है तो रेस्पिरेशन हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस है। उसके बाद में इट इन्वॉल्व द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल वेयर द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज द एनर्जी। अब ब्रीदिंग हमारे लंग्स में हो रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन हमारे सेल के अंदर जहां पे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहां पे हो रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि वो क्या करती है, एटीपी प्रोड्यूस करती है। ये हमारे हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और उसके पास में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो ये क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है फूड का और एनर्जी रिलीज करती है। तो कहाँ पे होगा फिर ये रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होंगी, सेल के अंदर होंगी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन। So getting this, what is breathing and what is respiration? So breathing is a physical process, respiration is a biochemical process. Breathing में हमारे lungs involve होते हैं, तो हमारे रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होती है, वो इन्वॉल्व होती है। ब्रीदिंग में जस्ट हम लोग ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये द मेजर डिफरेंसेस है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? Any doubt regarding this? No, ma'am. Okay. Then human respiratory system. It is divided into two components, respiratory tract and respiratory organ. So human respiratory divided into the two, that is a respiratory tract and respiratory organ. Respiratory tract is a passage which allows the movement of a inspired and expired air in the out of the lungs, consisting of nostril, nasal chamber, internal nerves, pharynx, लैरिंग्स एंड ट्रकिया। ये सीक्वेंस आप लोगों को याद करना होगा। आप ये सीक्वेंस इसी तरह से लिखिए, नोस्ट्रिल, नोजल चेम्बर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया। ये जो है इंटरनल नर्व्स नहीं लिखा तो भी ठीक है, लेकिन हो तो अच्छा है। तो ये सीक्वेंस आपको इसी तरह से लिखना होगा। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसके बाद में आएंगे। तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये दो इसमें डिवाइड हो गई है, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेकंड वन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये भी जो है वो बहुत अच्छा है कि कितने कंपोनेंट में रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, तो टू कंपोनेंट्स में होती है। कि या फिर एमसीक्यू में ऐसा भी पूछा गया तो डैश इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डैश इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पूछा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज अ टू कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आते हैं, नोस्ट्रिल आएगा, नोजल चेम्बर आएगा, फैरिंग्स आएंगे, लैरिंग्स आएंगे, ट्रकिया आएंगे। व्हाट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, अ पैसेज which allow the movement of inspired and expired air in the out of the lungs. Okay, तो lungs के जहां तक हमारे लंग्स है उसके ऊपर जितने भी हमारे सिस्टम है उसे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहेंगे। अब ये ट्रैक्ट क्या करती है, तो ये ट्रैक्ट क्या करती है, हमें इंस्पायर करती है कि आप जो है वो ऑक्सीजन को इन करो, और जो आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको एक्सहेल करो। तो वो जितना भी पैसेज है उस पैसेज को हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। अब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा, नोस्ट्रिल, नोजल चेम्बर, इंटरनल नर्व्स, फैरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रकिया। ये सभी चीजें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएंगी। सी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे जो है वो कौन से, तो यहाँ पे मेन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज है, माउथ है, ट्रकिया है, लंग्स है। क्योंकि बहुत बार हम लोग माउथ से भी रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे हम लोग बहुत दौड़ के आए हैं, बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज की है,
या फिर डर गए हैं, तो बहुत सारी चीजों में हम लोग हमारा रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज करने के लिए, बॉडी डिमांड ऑक्सीजन की इंक्रीज होने की वजह से हम लोग बहुत फास्टली मुंह से भी रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए नोज बनाया है। तो नोज, माउथ, ट्रकिया एंड लंग्स, दीज आर द ऑर्गन्स फॉर द रेस्पिरेशन। उसके बाद में फर्स्ट इज अ नोस्ट्रिल। हमें कितने 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। The 2 nostrils are opening of the nasal cavity and lies above the mouth. These are separated by a septum. तो यहाँ पे हमें सभी को पता है, हमें 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं जिसके अंदर नोजल कैविटी होती है, वो हमारे मुंह के ऊपर होते हैं और उसके बीच में एक सेपरेटेड सेप्टम होता है, इसलिए हमें 2 नोस्ट्रिल्स दिखाई देते हैं। Then nasal chambers, a pair of a passage in a head above the palate. They are separated from each other by a septum. Each nasal chamber is divided into the 3 regions: vestibular region, respiratory region and olfactory region. Okay? तो यहाँ पे हमारे नोजल चेम्बर्स जो है उसके अंदर जो पैलेट होता है, और पैलेट होता है उसके बाद में वो सेपरेटेड सेप्टम की वजह से 2 चेम्बर में डिवाइड हो जाते हैं, और नोजल चेम्बर्स डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन, दैट इज वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के 2 ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारे 2 ऑर्गन है। पहला ऑर्गन होता है नोस्ट्रिल, जिसे हम लोग कॉमनली नोज कहते हैं। जो हमारा नोज होता है उसमें 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं और वो हमारे माउथ के ऊपर होता है। उसके बाद में उसमें नोजल कैविटी होती है, और नोजल कैविटी जो है सेप्टम की वजह से सेपरेट होती है, तो हमें 2 नोस्ट्रिल्स दिखाई देते हैं। नोजल चेम्बर्स में ये पैसेज होता है, और इस पैसेज से जो है हमारी जो एयर है वो इन होती है। ओके, और उसके 3 रीजन से वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो हमने 2 हमारे नोजल या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के 2 ऑर्गन को डिस्कस किया है। अभी हमारा लास्ट 1 मिनट ही बाकी है, इसलिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, और हम जो है आगे का नेक्स्ट लेक्चर में जो है एवरीथिंग इनसाइड दैट